اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ تو چوتھی جماعت کا جو اردو ہے اس کا لیسن ہوائی جہاز ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے اس کے سوالات کیے ہیں، 4 سوال کیے ہیں۔ آج ہم 5ویں کوشچن پہ آئیں گے۔ تو 5واں جو کوشچن ہے اس میں آپ کو خالی جگہوں کو پور کرنا ہے۔ وہاں پہ کچھ مثالیں دی گئی ہے، تو اسی طرح سے آپ کو اور خالی جگہیں پور کرنی ہیں۔ جیسے وہاں پہ اس نے خواہش لکھا ہے، آپ کو اس نے آگے اس کو خواہشیں لکھا ہے، پھر کوشش کوششیں، روش روشیں، گنجائش گنجائشیں، سازش سازشیں، بنیاد بنیادیں، یاد یادیں، دیوار دیواریں، تلوار تلواریں، قطار قطاریں۔ یعنی یہ واحد جمع ہیں، ان لفظوں کے ہم نے لکھنے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ کچھ مثالیں دی گئی ہے تو اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر میں پڑھوں گا۔ خواہش خواہشیں، کوشش کوششیں، روش روشیں، گنجائش گنجائشیں، سازش سازشیں، بنیاد بنیادیں، یاد یادیں، دیوار دیواریں، تلوار تلواریں، قطار قطاریں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آگے ہم جائیں گے۔ ایک اور کوشچن ہے وہاں پہ، جانوروں کی آوازیں، کچھ جانوروں کی آوازیں۔ جیسے وہاں پہ لکھا ہے، آپ کو یہ کاپی پہ نوٹ کرنا ہے۔ ہاتھی چنگھاڑتا ہے، یعنی ہاتھی کی جو آواز ہے اس کو چنگھاڑنا کہتے ہیں، جو ہاتھی آواز نکالتا ہے۔ شیر کی آواز کو دہاڑنا کہتے ہیں، یعنی شیر دہاڑتا ہے۔ اسی طرح گھوڑا جو ہے، گھوڑے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہن ہنانا کہتے ہیں، یعنی گھوڑا ہن ہناتا ہے۔ اس طرح کتے کی جو آواز ہے، کتے کی آواز کو بھونکنا کہتے ہیں، یعنی کتا بھونکتا ہے۔ تو آگے کچھ اور جانوروں کی آوازیں میں نے یہاں پہ لکھی ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ایک اور کوشچن ہے، وہاں پہ آپ کو ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ کو اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ یعنی ان کی تلاش کرنی ہے۔ تو تھوڑا رواج ہم کریں گے۔ اسم آپ کو پتہ ہوگا کیا ہے۔ اسم جو ہے وہ لفظ ہے جو کسی جگہ، کسی شخص یا کسی چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے، اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ تو اسم کی قسمیں ہیں، ایک ہے اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ جیسے آپ نے انگلش میں پڑھا ہے، اسم نکرہ جو ہے اس کو ہم کامن ناؤن بھی کہتے ہیں، یعنی انگلش میں کامن ناؤن جو عام نام ہوتا ہے تو اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ تو اسم نکرہ کی تعریف میں نے یہاں پہ لکھی ہے، ڈیفینیشن لکھی ہے۔ یعنی اسم نکرہ وہ اسم کی قسم ہے جو کسی عام شخص، کسی عام جگہ یا کسی عام چیز کے نام کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اسم نکرہ کو ہم اسم عام بھی کہتے ہیں، یعنی اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، کسی عام جگہ یا کسی عام چیز کے نام کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اسم نکرہ کو دوسرا نام اسم عام بھی کہتے ہیں ہم اس کو۔ مثال کے طور پر لڑکا، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی شخص ہے عام لڑکا یا آدمی یا عورت۔ اسی طرح جانور کا نام بلی، گائے، کتا۔ اس طرح کتاب ٹھیک ہے نا، کتاب کا نام جب آئے گا آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ کوئی بھی کتاب ہوگی، عام کتاب۔ اس طرح شہر یعنی شہر۔ اس طرح گاؤں۔ تو یہ ہو گئے اسم عام، یعنی اسم نکرہ بھی ہم ان کو کہتے ہیں۔ تو آگے ہم جائیں گے اسم معرفہ۔ اسم معرفہ جو ہے، اسم معرفہ کی تعریف اور اسم معرفہ کی مثالیں ہم لکھیں گے۔ تو اسم معرفہ کو ہم پراپر ناؤن بھی کہتے ہیں، یعنی اسم معرفہ جو ہے یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص یا کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اسم معرفہ کو ہم دوسرے لفظوں میں اسم خاص بھی کہتے ہیں، یعنی تعریف میں اس کی پھر پڑھتا ہوں۔ پراپر ناؤن ہم اس کو کہیں گے، جیسے انگلش میں آپ پراپر ناؤن پڑھتے ہیں، تو اسی طرح اردو میں اسم معرفہ پراپر ناؤن کو کہتے ہیں۔ یعنی اسم معرفہ وہ اسم ہے جو، یعنی اسم کی وہ قسم ہے جو کسی خاص شخص، کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو ظاہر کرتی ہے، اس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں۔ یعنی اسم معرفہ کو ہم دوسرے لفظوں میں اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسم نکرہ میں میں نے لڑکا لکھا ہے، یہاں پہ میں نے حامد لکھا ہے، یعنی حامد جو ہے لڑکے کا نام ہے۔ اسی طرح کتاب وہاں پہ میں نے لکھا ہے، یعنی ہماری معتبر کتاب، متبرک کتاب قرآن مجید یہاں پہ میں نے لکھا ہے۔ اسی طرح شہر کا نام جو ہے
है शहर, कोई भी शहर है, यहाँ पे मैंने एक ख़ास शहर का नाम लिखा है, जैसे श्रीनगर है। इसी तरह गाँव जो है, तो गाँव जो है, गाँव लफ्ज़ जो है वो इसमें मुआरिफा है, ये कोई भी गांव हो सकता है। यहाँ पे मैंने द्रगमुला गांव का नाम लिखा है, तो ये एक ख़ास गांव है, तो इसको हम इसमें मुआरिफा कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो किताब है उस पे एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें आपको इसमें मुआरिफा और इसमें निकरा जो है वो ढूंढना है, यानी कौन सा लफ्ज़ इसमें मुआरिफा है और कौन सा लफ्ज़ इसमें निकरा है। तो मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बाद में हम इसमें ढूंढेंगे कौन है इसमें मुआरिफा और कौन है इसमें निकरा। दुनिया का एक मुल्क सऊदी अरब है जहाँ जाने के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। मक्का और मदीना सऊदी अरब के दो शहर हैं। मदीना मुनव्वरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह है। मक्का मुअज़्ज़मा में खाने काबा है। मक्का के चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो ये इसमें आपको इसमें मुआरिफा और इसमें निकरा ढूंढना है। तो ऊपर जो मिसालें मैंने दी, डेफिनेशन मैंने दी इसमें मुआरिफा और इसमें निकरा की, तो इससे आपको आसान हो जाएगा। तो पहले हम इसमें निकरा इसमें ढूंढेंगे, यानी अगर हम शुरू करेंगे, दुनिया का एक मशहूर, दुनिया का एक मुल्क सऊदी अरब है, यानी इसमें जो पहला ही लफ्ज़ आता है मुल्क, यानी दुनिया का एक मुल्क सऊदी अरब है, यानी मुल्क जो है ये इसमें निकरा है। तो दूसरा लफ्ज़ इसमें आता है शहर, ये भी इसमें निकरा है। आरामगाह, ये भी इसमें निकरा है। पहाड़ियाँ, ये भी इसमें निकरा है। और हवाई जहाज़ इसमें निकरा है। तो इसमें मुआरिफा ख़ास नाम है, ख़ास, इनको हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। जैसे मुल्क जो है ये इसमें निकरा है। मुल्क का नाम जब आएगा किसी भी मुल्क का, जैसे सऊदी अरब है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, चाइना है, तो इनको हम मुल्क का नाम जब आता है किसी ख़ास मुल्क का नाम, तो वो आएगा इसमें मुआरिफा में। जैसे यहाँ इस पैराग्राफ में सऊदी अरब है। तो इसी तरह शहर, मुख्तलिफ़ शहर है दुनिया के, मुख्तलिफ़ ममालिक में अलग अलग शहरों के नाम है। जैसे सऊदी अरब के दो मशहूर शहर है, मदीना और मक्कातुल मुकर्रमा, यानी मक्कातुल मुकर्रमा जो है ये इसमें मुआरिफा, यानी एक ख़ास शहर का नाम है। इस तरह मदीना मुनव्वरा है, ये ख़ास शहर का नाम है। दिल्ली, ये ख़ास शहर का नाम है। श्रीनगर, ये ख़ास शहर का नाम है। तो इनको हम कहेंगे ये इसमें मुआरिफा है। इसी तरह किसी ख़ास शख्स का नाम जब आएगा, यहाँ आपके पैराग्राफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह मैंने मिसाल में लिया है हामिद है, अब्दुर्रहमान है, अब्दुल जब्बार है, हैं, तो ये आएंगे इसमें मुआरिफा में, ठीक है ना। इसी तरह खाने काबा एक ख़ास जगह है, यानी दुनिया में एक ही जगह है जिसका नाम खाने काबा है, तो ये भी आएगा इसमें मुआरिफा में। तो अब आपको समझ आया होगा इसमें मुआरिफा क्या है और इसमें निकरा क्या है। तो इसी के साथ ये जो आपका ये लेसन जो है, इसके सवालात भी हमने मुकम्मल किए हैं। तो तकरीबन हमने 4 वीडियो इसके बनाए हैं, 2 में हमने इस लेसन को पढ़ा है और 2 वीडियोज़ में हमने इसके जो सवालात है दर्स किताब के, वो सवालात हमने किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और इसी तरह जिस तरह मैंने इन वीडियोज़ में बनाया है, इसी तरह आप अपनी नोटबुक पे, कापी पे इनको नोट करना अच्छी तरह से, और इन सवालात को आपने याद करना है। कल आपको एग्ज़ाम में ये आसान हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कुछ जानवरों की आवाज़ें, तो 2-4 जानवरों की आवाज़ें हमें किताब में हैं, तो कुछ और मैंने ढूंढी है, तो वो आपके लिए मैंने यहाँ पर रखी है। जैसे शेर दहाड़ता है, यानी शेर की आवाज़ को दहाड़ना कहते हैं हम। हाथी चिंघारता है, यानी हाथी की आवाज़ को हम चिंघारना कहते हैं। इसी तरह घोड़ा जो है हनाता है। गधा हिचू हिचू करता है। इसी तरह कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं करती है, गाय रमती है, सांड डकारता है, बकरी मिमाती है, कोयल कूकती है, चिड़िया चूं चूं करती है, कौवा काय काय करता है, कबूतर गुटरगू करता है, मक्खी भुनभुनाती है, यानी मक्खियाँ जो है उनकी आवाज़ जो होती है भूं भूं की आवाज़, उसको भुनभुनाना कहते हैं। इसी तरह मुर्गी जो है, मुर्गी की आवाज़ आपने सुनी होगी, तो जो मुर्गी की आवाज़ होती है उसको कर कड़ाती कहते हैं, यानी कर कड़ाना, यानी मुर्गी जो है वो कर कर कड़ाती है, ठीक है ना।
इस तरह उल्लू हूकता है, उल्लू की आवाज़ जो आपने देखी सुनी होगी, उल्लू जो है वो हूकता है, यानी उल्लू की जो आवाज़ है उसको हूकना कहते हैं। इसी तरह मोर जो भी है, मोर की आवाज़ और हाथी की आवाज़ एक जैसी होती है। इसी तरह मोर की आवाज़ को भी हम चिंघारना कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह तोता रट लगाता है, मुर्गा यानी ऊपर आपने मुर्गी की करकड़ाती है, मुर्गी की आवाज़ को करकड़ाना कहते हैं, ठीक है ना। मुर्गा जो है कुकुड़कू करता है, ठीक है ना। जो मुर्गे की आवाज़, मुर्गे की जो बांग होती है ना, उसको हम कुकुड़कू कहते हैं। इस तरह परिंदे जब एक साथ झुंड में होते हैं, वो चिरू चिरू करते हैं, उसको चिरचिराना कहते हैं, ठीक है ना। यानी परिंदे चिरचिराते हैं। इस तरह ऊँट की आवाज़ जो है सुनी किसी ने होगी तो उसको बिग बिगाना कहते हैं, बिग बिगाता है। इस तरह सांप जो है, सांप की जो आवाज़ होती है उसको भुंखारना कहते हैं, यानी सांप जो है भुंखारता है। इस तरह गिलहरी जो है चटचटाती है, यानी गिलहरी की आवाज़ को हम चटचटाना कहते हैं, चटचटाती है। इस तरह मेंढक जो है, मेंढक की आवाज़ आपने सुनी होगी खेतों में, वो जो आवाज़ निकालती है उसको तराना कहते हैं, यानी मेंढक तराता है, मेंढक तराता है। इस तरह झिंगार झिंगारता है, और बंदर जो है गुगायाता है, गुघो गुघोयाता है, गुघोना कहते हैं उसको। तो ये कुछ जानवरों की आवाज़ें हैं, ये भी आप नोटबुक पे लिखना है, तो ये आपको आपकी जो वोकैबलरी है उसको बढ़ाएगा, और आपको थोड़ा लिखने, जब ये लिखोगे आप तो आपकी हैंड राइटिंग भी ठीक हो जाएगी उसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।